हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जल्द ही पर्यटन से जुड़ा एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। विंटर ट्रैवल एग्जीबिशन 2026 आयोजित की जा रही है। यह प्रदर्शनी 17 से 19 मार्च 2026 तक शिमला के प्रसिद्ध गेटी थिएटर में आयोजित होगी। आयोजकों के अनुसार यह 3 दिवसीय आयोजन भारतीय पर्यटन, संस्कृति और आधुनिक ट्रैवल सेवाओं का अनूठा संगम होगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन स्थलों, संस्कृति और यात्रा विकल्पों को एक ही मंच पर प्रस्तुत करना है, ताकि पर्यटक भारत की विविधता को करीब से जान सके। आयोजन का आधिकारिक उद्घाटन 17 मार्च की सुबह किया जाएगा। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों, ट्रैवल कंपनियों और टूर ऑपरेटरों के स्टॉल लगाए जाएंगे। यहाँ आने वाले लोग पर्यटन से जुड़ी नई जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और यात्रा पैकेजों के बारे में सीधे विशेषज्ञों से बातचीत कर सकेंगे। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम पर्यटन उद्योग और यात्रा प्रेमियों के लिए एक वन विंडो प्लेटफॉर्म की तरह होगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि प्रदर्शनी में खास तौर पर भारत के कई लोकप्रिय पर्यटन राज्यों और स्थलों की जानकारी दी जाएगी। आयोजन की खास बात यह है कि यह प्रदर्शनी आम लोगों और पर्यटन उद्योग से जुड़े पेशेवर दोनों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सके। आयोजकों का मानना है कि इस आयोजन से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिलेगी। States like Tamil Nadu, Meghalaya, Bihar, and many other states coming to showcase their packages and products. So we'll go through a very brief presentation in which we wanted to show the story that we wanted to convey with you. The presentation goes like this. So fostering national tourism ties in the heart of the Himalayas, the winter travel exhibition in Shimla is going to be launched for the first time by Travel and Tourism Bazaar, Kolkata. The CEO and Director, Mr. Amit Biswas, is with me. He is available here for all your questions after this presentation. So, bridging the landscape, connecting the cultures, the vision of this Travel and Tourism Bazaar, Kolkata is to create a premier networking platform that brings diverse Indian states together, encouraging cross-state tourism, cultural heritage, cultural exchange, and sustainable travel practices. Now, there are questions in the travel and tourism industry which are still floating around because before and after the scenario in travel industry after the COVID has changed a lot, right? So this gives a face-to-face connection between the travelers and the service providers in such a way that the people can interact with the travel service providers in this platform very freely, and they can interact with the people. The other significant state which is participating here is Bihar, the cradle of the history and the spiritual awakening, the epicenter of the Buddhist circuits, Bodh Gaya, ancient center of the learning Nalanda, and there are many other rich spiritual heritage from Bihar will also be showcased. And why it is mattering here? This connects spiritual seekers from the Himalayas to the plains, fostering a deep cultural and historical tourism exchange. So, ये तो सही बात है कि Gulf War is something that is all happening now. It's just started only about couple of fortnights, couple of weeks. This kind of fair takes a preparation for almost a year. We have been trying to hold this festival since almost last year. We wanted to actually have it in the November. Unfortunately, confirmation from the different states, दूसरे राज्यों को participation की जो confirmation वो आते आते हमें ये time लग गया ताकि हमें reschedule करनी पड़ी and finally हम इसको मार्च में hold कर पा रहे हैं. कोशिश कर रहे थे फरवरी में करूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया. फिर मार्च में अगर इस टाइम मार्च में नहीं होता तो शायद
इस साल हो ही नहीं पाता। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर की जो एक रहती है ना, अप्रैल टू मार्च, इनकी सारी फंड्स वगैरह सब कुछ इसके हिसाब से चलता है। तो वी आर ट्राइंग टू कवर इट विद इन 25-26 ईयर। बट ये सही है कि ये सही वक्त नहीं है पर्यटन के लिए। लेकिन तब जब हम लोग ये शुरू किया था आयोजन इसके लिए, तब गल्फ वॉर कहीं पिक्चर में नहीं था। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 15 days वी हैव बीन गोइंग थ्रू दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बट हमें लगता है कि शुभ बुद्धि की उदय होगी। कितना इफेक्ट हुआ है टूरिज्म? लोग समझना चाहेंगे कि शांति से ही अल्टीमेटली सब कुछ समाधान हो सकती है। बेसिकली इंटरनेशनल टूर में इफेक्ट हुआ, डोमेस्टिक टूर में अभी तक उतना इफेक्ट नहीं आया, लेकिन आने वाला तो है। इंटरनेशनली जो जाना चाहते हैं ऑलरेडी टिकट करके रखा था, उसमें तो अच्छा खासा इफेक्ट आया। नहीं, यहाँ पे बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही है क्योंकि हाँ। जिस तरह से गैस वगैरह की। ये गैस तो अभी लास्ट 3-4 डेज से चालू हुआ, पहले से इट वाज नॉट इतना इफेक्टिव लग रहा था। अभी पैनिक से गैस का इफेक्ट हो रहा है। और होटल, हम लोग भी लास्ट 7-8 डेज यहीं पे है, तो पहले दिन से ही खाना खा रहा है ना, लास्ट 2 डेज से सुन रहा है जब जा रहा है रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, तो बोल रहा है गैस का दिक्कत है, अभी तवा रोटी नहीं मिलेगा आपको, ये रोटी लेना पड़ेगा। तो ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन इसके लिए अगर 1 साल पहले से प्रिपरेशन आप तो फोर्स ही नहीं कर पाएंगे। जो 1 साल पहले गल्फ वॉर होगा तो करेंगे नहीं। ये तो 1 साल पहले से हम लोगों का, जैसे नेक्स्ट ईयर का अगर हम लोग करना चाहते हैं सेम इसमें, तो अभी अप्रैल से ही आपको प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है। 1 साल से प्रिपरेशन के बाद ही आपका गवर्नमेंट का, आप भी गवर्नमेंट का बहुत सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाते हैं जो रेगुलर से आप लोग करते हैं, तो मीडिया का आप लोग भी जाते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में जो एक बार हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है।